Hello students, in this video we are going to learn about queries. In the previous video we have learned about creating table, inserting records, updating records, altering table, deleting the records and deleting the table. Now the last topic of your syllabus chapter was left, that is query. Means in the first video I have defined these 7 tasks: creating table, inserting record, updating record, altering table, deleting. These are already covered in the previous lectures. Today we are going to perform this last, that is queries. What is query? Queries are the statement which produces the output from a table on the basis of some predicate. Predicate means condition. So queries are the statement which produces the output on the basis of some condition. The command for the query is, remember this way, select column names from table name where condition. Remember this syntax. Now that will be easy to implement the questions in this syntax. Select column name from table name where condition. Now let us do some query based on our table student. Let us say we are having a table student in which these are the column: ID, name, class, marks, grade and date of birth. And we want to display some record from the table on the basis of some condition, then we have to write the query. Now let us write some simple queries. Suppose the first question is this: display the name, class and marks of the student. Only this much is there. Means you have to display name, class and marks of the student. Then you have to write select column name. So select name, comma, class, comma, marks from table name, that is student, semicolon. Because in this question no condition was there, so simply we have written select name, comma, class, comma, marks from student. It will display all the records of the table for these 3 columns. Now the second question is this: suppose it is asked display all the record, display information, display details, display list. Suppose the question is this: display details of the students, या display information of the student, या फिर display record of the student. Means you have to display all the record, means all the values of all this column. Then we will write select asterisk. To asterisk specify all the columns, all the record. Select asterisk from table name, that is student. So this will display all the data from the table. So in this way too the question is asked. If question is asked in the way that you need to display the value of some column, then that is you need to specify the name of the column. And if you want to display entire record, then you have to write here asterisk. ये बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में कुछ कॉलम के नाम दे रखे हैं और उन्हीं कॉलम की वैल्यू दिखानी है तो फिर आपको कॉलम के नाम लिखने होंगे. और अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन या डिस्प्ले रिकॉर्ड या फिर डिस्प्ले डिटेल, मतलब हमें सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो फिर यहाँ पर एस्टेरिक लिखा जाएगा. इन दोनों क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं थी. नाउ लेट अस ट्राई सम मोर क्वेश्चन विथ कंडीशन. Now the question is this: display information of the student who are having marks in the range of 90 and 100. So listen the question very carefully. Display information of the student. So display information of the student means you have to write select asterisk
from student. To display information of the student. Now the condition who are having marks in the range of 50 and 100, then condition we write in where clause. इन्हें टेक्निकल भाषा में क्लॉज बोलते हैं. तो वेयर क्लॉज, वेयर कंडीशन क्या है, मार्क्स बिटवीन 90 and 100. So display information, select asterisk from student, where marks between 900, to where marks between 900. Let us try some more question. Display name and class of those students who are having grade A or B. So now in this question, what is this? Display name and class. कॉलम के नाम क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा select name comma class from टेबल का नाम, स्टूडेंट, कंडीशन जिनकी ग्रेड ए और बी है, वेयर ग्रेड इन ए कॉमा बी, इन बंद हुआ हमारा और ये सेमीकोलन. इनकी जगह पे आप और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, ऐसे ग्रेड इक्वल टू ए और ग्रेड इक्वल टू बी, ऐसे, पर इन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कन्वीनियंट है. कुछ और क्वेरीज लिखते हैं, अच्छी क्वेरी. डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग मार्क्स नल, जिनके मार्क्स नल है, मतलब जिनके मार्क्स की कोई एंट्री नहीं है, उनकी डिटेल दिखानी है. तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल. इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं, पहले भी फिर बता रहा हूं. जब भी नल कंडीशन में लिखा जाता है तो इक्वल टू नल नहीं लिखा जाता, इज नल लिखा जाता है. अगर मैं ऐसे लिख दूंगा मार्क्स इक्वल टू नल, देन दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना है, मार्क्स इज नल आएगा. नाउ लेट अस डू सम मोर क्वेरी. So the question is display name of those students या name and marks of those students whose name starts with A. तो हम क्या लिखेंगे, display name and marks. Select name comma marks from table name. कंडीशन क्या बोल रहा था कि जिसका नाम ए से शुरू होता है, तो वेयर नेम लाइक क्या ए और परसेंट. परसेंट का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर. ये हम लाइक ऑपरेटर पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में. तो हियर वी आर सिंपली राइटिंग दिस. अगर हम ऐसे लिख देते हैं नेम इक्वल टू ए, तो दिस इज रॉन्ग. इसका मतलब ये हो गया जिसका नाम ए है, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जिसका नाम ए से शुरू होता है. अब लाइक ऑपरेटर के मैं एक और बहुत अच्छा यूज दिखा रहा हूं. क्वेश्चन इज दिस, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर बोर्न इन द ईयर 2008. तो सिलेक्ट asterisk from student where date of birth like 2008 और फिर परसेंट का साइन. हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टेबल है उसके अंदर जो फॉर्मेट है
वो YYYY डैश MM डैश DD के फॉर्म में, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट यही फॉर्मेट हमारा माई SQL में डेट का सेव होता है। तो फिर हमारी क्वेश्चन क्या था, उन बच्चों की डिटेल दिखानी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ लाइक 2008% मीन्स यहाँ स्टार्टिंग में 2008 आ जाए और उसके बाद में कुछ भी आ जाए यहाँ पर। तो ऐसे ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। नाउ सम another important query, that is calculated field। calculated field का मतलब एक ऐसा कॉलम जो टेबल में नहीं है पर हम टेबल में दूसरे कॉलम से कैलकुलेट करके बना सकते हैं। मीन्स कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब होता है कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम। तो कैलकुलेटेड फील्ड्स आर दोज कॉलम विच आर नॉट प्रेजेंट इन द टेबल बट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अनदर टेबल। फॉर एग्जाम्पल, let us say the schema means design. The schema of the table is ID, name, class, marks, grade and date of birth. And suppose I want name and percentage of the student. I want name and percentage of the student, and percentage is what? Percentage is marks upon 5. अब इस टेबल के अंदर परसेंटेज नाम का कॉलम तो है ही नहीं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्ले नेम एंड परसेंटेज। डिस्प्ले नेम एंड परसेंटेज वेयर परसेंटेज is marks upon 5. Suppose this is a question. अब परसेंटेज नाम का कॉलम तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको बच्चा कैसे लिखेगा? इसको लिखेगा वो सिलेक्ट नेम कॉमा परसेंटेज फ्रॉम student where percentage equal to marks upon 5. Most of the student will write this command. आप भी बेटा अगर आपको नहीं पता है तो आप भी यही कमांड लिखोगे, and this is wrong. बच्चा ये कमांड लिख के आएगा और ये गलत है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाने वाला। क्यों? हमने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट नेम कॉमा परसेंटेज। परसेंटेज नाम का कॉलम टेबल में है ही नहीं, तो वो सिलेक्ट कैसे हो जाएगा? हम सिलेक्ट तो केवल वही चीज़ कर सकते हैं जो टेबल के अंदर होती है। जब टेबल के अंदर परसेंटेज नाम का कॉलम है ही नहीं तो वो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, और जब सिलेक्ट हो ही नहीं सकता तो फिर आउटपुट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एरर देगा। तो परसेंटेज कुछ नहीं है क्या? मार्क्स अपॉन 5 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें परसेंटेज नहीं दिखानी है, हमें दिखाना है मार्क्स अपॉन 5, और इस मार्क्स अपॉन 5 को हम परसेंटेज कह रहे हैं। अब चाहे इसे कुछ भी कह लो, मार्क्स अपॉन 5 को परसेंटेज कह लो या XYZ कह लो, ABCD कह लो, कुछ कह लो, मतलब वो तो वो नाम है जो हमने इसका रख दिया है। एक्चुअल में क्या दिखाना है? मार्क्स अपॉन 5 दिखाना है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये बोर्ड में मिलेगा आपको इस साल। सिलेक्ट नेम कॉमा परसेंटेज। परसेंटेज कुछ नहीं है, क्या है? ये मार्क्स अपॉन 5 है, तो परसेंटेज की जगह पर मार्क्स अपॉन 5 फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज स्टूडेंट एंड सेमीकोलन।
तो सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स अपॉन 5 फ्रॉम स्टूडेंट, दिस इज द परफेक्ट आंसर। पर इसका जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा, एक कॉलम आएगा नेम नाम का, जो ये दे रखा नेम, और जो दूसरा कॉलम बनकर आएगा वो बनकर आएगा मार्क्स अपॉन 5, मतलब कॉलम का नाम जो होगा वो कॉलम का नाम क्या होगा, ये होगा मार्क्स अपॉन 5, और यहाँ पर वैल्यू सही लिखी होंगी। दिस इज द परफेक्ट आंसर, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। बट आई वॉन्ट इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ द कॉलम एज मार्क्स अपॉन 5, इसकी जगह पर मैं चाहता हूं कि ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए। तो फिर क्या, ये फॉर्मूला जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखने के बाद में, ध्यान रखना है बाद में, डबल कोट्स में, एक और बात ध्यान रखनी है, डबल कोट्स में एक्सप्रेशन लिखने के बाद डबल कोट्स में जो भी नाम आप इस कॉलम का देना चाहते हो वो नाम लिख दो। सपोज इस कॉलम का नाम मैं परसेंटेज देना चाहता हूं तो फिर परसेंटेज ऐसे। तो अब क्या होगा, कॉलम का नाम क्या लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज, और वैल्यू इसकी नीचे मार्क्स अपॉन 5 की लिखी आएगी। तो दिस इज टेक्निकली नोन एज ALIAS, एलियाज नेम। इसको टेक्निकली हम एलियाज नेम बोलते हैं। एलियाज का मतलब डुप्लीकेट। सो वी हैव प्रोवाइडेड अ डुप्लीकेट नेम टू द कॉलम। कोई जरूरी नहीं है कि केवल कैलकुलेटेड फील्ड का ही एलियाज नेम रखा जाता है, तुम एलियाज नेम किसी भी कॉलम का रख सकते हो। सपोज ये जो नेम है इसकी जगह पर मैं दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम, तो ऐसे कर लो, सिलेक्ट नेम, फिर स्पेस छोड़कर इस डबल कोट्स में स्टूडेंट नेम, तो फिर इसकी जगह पर ये स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर। तो इन दिस वे यू कैन प्रोवाइड द एलियाज नेम ऑफ एनी कॉलम, एंड दिस इज द कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब कॉलम। तो कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब एक ऐसा कॉलम जो टेबल के अंदर नहीं है पर दूसरी टेबल से हम कैलकुलेट कर कर उसे दिखा सकते हैं, तो दैट इज नोन एज कैलकुलेटेड फील्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड का। सपोज आई एम आस्किंग टू डिस्प्ले नेम एंड CGPA of the student, and CGPA is calculated as marks upon 9.5 for the student who are studying in class 10th। तो हम कैसे लिखेंगे, select name कॉमा CGPA तो टेबल में है नहीं, पर CGPA हम क्या बोल रहे हैं, CGPA मार्क्स अपॉन 9.6 है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हम अभी सपोज कर लेते हैं इसका नाम हम CGPA रखना है, तो स्पेस छोड़कर जो भी नाम रखना है आपको, CGPA फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। अब कंडीशन भी थी इसमें कि 10th क्लास के बच्चों की दिखानी है, तो वेयर क्लास इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। So in this way you can write the calculated field. So this is a very important topic you will get in the exam. So in this video we have covered the queries. Queries is what? Queries are the statement which produces output from the table on the basis of some condition. The command for the query is select columns from table name where condition। अगर क्वेश्चन में कॉलम के नाम दे रखे होंगे तो हम सिलेक्ट के साथ में कॉलम के नाम लिख देंगे, और अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट या डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, तो फिर हम एस्ट्रिक लिखेंगे। राइट ऑल दीज क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दीज आंसर। वीडियो को दोबारा रिवर्स करके क्वेश्चन को सुनना, क्या मैंने डिक्टेट करा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिखना और उसके बाद ये आंसर लिखना है। ये जो मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 ये रहे, थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ या पॉज कर लेना, और बाकी 6, 7, 8, दिस इज 8th वन। ये कुछ क्वेरी मैंने यहाँ लिखी हैं, इन्हें पॉज कर लेना। यू विल फाइंड 3 क्वेश्चन out of these 8 queries
इस 8 क्वेरीज में से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे एग्जाम में. These are very important question. Watch the video again and write all the question which I have dictated in the video and write answer from here. In the next video, we will learn some more advanced query along with more clauses. Till then, watch it and write it. Thank you for watching.